بلیٹن کی شروعات کریں گے، لیکن سب سے پہلے اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ ہندوارہ کے راجوار میں بھیانک آتش زدگی، 12 رہائشی مکان اور 2 گاؤں کھانے خاکستر۔ جموں کے جوڑیا علاقے سے لاپتہ نوجوان کی پاکستان میں موت کی تصدیق، تقریباً 1 ماہ قبل نوجوان ہوا تھا لاپتہ۔ اننت ناگ میں اما دیوی مندر 34 سال بعد کھولا گیا، افتتاحی تقریب میں مرکزی وزیر مملکت نتیانند رائے نے کی شرکت۔ گزشتہ 14 دنوں میں 3 لاکھ کے قریب یاتریوں نے بابا برفانی کے درشن کیے مکمل۔ پلوامہ میں چھیڑ چھاڑ اور ہراسانی کے الزام میں 2 گرفتار، پولیس کا بیان۔ ڈونالڈ ٹرمپ انتخابی ریلی کے دوران فائرنگ سے ہوئے زخمی، فائرنگ کے دوران 2 حملہ آور سمیت 2 افراد ہلاک۔ اسرائیل کا سیف زون کے پناہ گزین کیمپ پر حملہ، 100 سے زائد فلسطینی جاں بحق۔ سزا کے خلاف اپیلیں منظور، عدالت نے عمران خان بشرا بی بی کو عدت نکاح کیس میں بری کر دیا۔ 7 ریاستی کی 13 اسمبلی سیٹوں پر ہوئے ضمنی انتخابات، انڈیا بلاک 10 نشستوں پر کامیاب، بی جے پی کے کھاتے میں 2 سیٹیں۔ جاپان میں خفیہ معلومات کا سکینڈل، 200 سے زائد اہلکار برطرف۔ سرخیوں کے بعد خبریں تفصیلات کے ساتھ، سب سے پہلے بڑی اور اہم خبر کو لے کر بات کریں گے، اور اس وقت کی بڑی خبر جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے شانگس سے، جہاں پہ اوما دیوی مندر کو 34 سال بعد کھول دیا گیا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ نتیانند رائے نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی، وہ اس وقت اس تقریب میں موجود ہے، اور اس مندر کو 34 سال بعد عقیدت مندوں کے لیے کھولا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ عقیدت مندوں میں جوش و خروش کا ماحول اس وقت دیکھا جا رہا ہے۔ اننت ناگ ضلع میں ایک قدیم مندر کو 34 سال بعد دوبارہ عقیدت مندوں کے لیے کھولا جا رہا ہے۔ بتا دیں کہ نامساعد حالات کی وجہ سے یہ مندر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تھا، تاہم آج 34 سال بعد عقیدت مندوں کے لیے یہ خوشخبری، کیونکہ اس مندر کو 34 سال بعد دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے، دوبارہ اسے کھولا گیا ہے۔ اس موقع پر اس حوالے سے پہلی تقریبات کا انعقاد چل رہا تھا، جو مذہبی رسومات ہے، کل بھی وہاں پہ ہون ہو رہا تھا، اور آج تصویریں ہیں جہاں پہ مرکزی وزیر مملکت نتیانند رائے بھی وہاں پہنچے اور افتتاحی تقریب میں انہوں نے شرکت کی۔ وہاں پہ اس موقع پر پوجا پاٹ کا بھی انعقاد ہوا، جس میں لوگوں کے خاص تعداد نے شرکت کی، اور وہاں تمام لوگ پہنچ گئے ہیں، کیونکہ اس اہم مندر کو قریباً 34 سال بعد عقیدت مندوں کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ تصویریں مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ امور نتیانند رائے، وہ بھی آج یہاں پہنچے اور اس مندر کا انہوں نے افتتاح کیا۔ علاقے کی مقامی مسلم آبادی کے تعاون سے اس مندر کو آج 34 سال بعد پھر عقیدت مندوں کے لیے کھولا گیا ہے۔ مقامی لوگ کیا کچھ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد سیدھا اپنے نمائندے کے پاس چلیں گے۔ دوبارہ یہ گو یہ سان خاطر بڑا خوشی ہند موقع کہ آئی یوت یہ کور خیر مقدم جان لکن ہند تہ سہ مائنڈ بدلیومت۔ اس زن نمتس من مائنڈ سہ ہسا وی گومت واریاہ چینج، کیونکہ بہت گۄڈنِچ لٹہِ تو یہ یمس تہ پرٛژھ تٔمِس دیُت اَسہِ اصل سُجاو راستہ کپٲرۍ چھُ کیاہ چھُ، تمو کریو زبردست استقبال کہ تُہۍ یِیِو سا واپس۔ وۄنۍ چھُ گورمنٹُک چل ییٚتہِ گورمنٹ گژھن حالات بالکل صاف سازگار گژھن، وۄنۍ چھُ گژھن یہ آسان قدرتس کرُن کہ یتھ آیہِ یہ چینجز آیہِ، وۄنۍ گژھِ یی بیٚیہِ بہار تہٕ بیٚیہِ یِم کٲشِر پٲٹھۍ بیٚیہِ پانہٕ واپس۔ یہ چھُ مُبارک دۄشوٕنی قومن ہٕنٛدِس تہِ مُسلمانس تہِ ییٚتہِ سپورٹ چھُ اَسہِ کران، بیٚیہِ کیٛاہ چھُ منگان ماجہِ منگان برونٛٹھمٕے یوت حالات گژھن کیٛاہ بیٚیہِ بنٕنۍ تِتھٕے کٔنۍ بٲے چار بیٚیہِ کیٛاہ آ وۄمید چھِ یتھ چھُ وۄنۍ پیٚٹھمٕے اگر رۄب کرِ تٔمۍ سٕنٛز گژھِ سیٚکشن آسٕنۍ بیٚیہِ بنہِ تِتھُے ماے محبت چھُ برابر تہِ کٲشرِس تہِ مُسلمانس تہِ بٹس تہِ سکھس تہِ ماے چھُ برابر یوٚت ٹھیٖک۔ اظہار کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ایک بار پھر بھائی چارے کی مثال اس علاقے میں قائم ہوئی ہے۔ سیدھا گراؤنڈ زیرو پر سے ہمارے نمائندے پیر مظفر اس وقت براہ راست ہم سے جوائن کر چکے ہیں۔ مظفر، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔
34 साल बाद इस मंदिर को दोबारा खोल दिया गया है, किस तरह का माहौल वहां पे इस वक्त देखा जा रहा है? बिल्कुल जोर मैं आपको बता दूं, अगर हम जनूबी कश्मीर के इस मुकाम की बात करें, यहाँ पे आज काफी चहल पहल देखने को मिल रही है। कहीं न कहीं यहाँ पे आज 34 साल के बाद जो ये टेम्पल है उम्मा देवी स्थापन उम्मा नगरी बरार आंगन, यहाँ पे आज इसको खोल दिया गया है और अकीदतमंदों की तादाद खासी यहाँ पे नजर आ रही है। मैं बता दूं फिलहाल आपको मैं यहाँ से ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वो भी यहाँ पे लगी हुई। इसके साथ साथ एक खास बात यह रही कि इस स्थापना का जो उद्घाटन आज जो मरकजी उम्र दाखिला जो होम नित्यानंद राय वो यहाँ पे खुद पहुंचे और यहाँ पे उन्होंने उद्घाटन इसका किया और इस टेम्पल को बाज़ाब्ता तौर पे आज 34 साल के बाद अकीदतमंदों को खोल दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और बात ये आया है कि यहाँ की जो मुसलमान बरादरी खासकर जो भाईचारा यहाँ पे एक बार फिर देखने को मिला। इनका अहम रोल यहाँ पे बना इस मंदिर को खोलने के हवाले से, क्योंकि मैं बता दूं अगर हम 90 की दशक की बात करें, दहाई की बात करें, जब नाबसत हालात हुए थे कहीं न कहीं उसके बाद जो यहाँ पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन मर्ज वजूद में आई और ये एक अच्छा कदम है। अगर हम अकिनगाम अनंतनाग की बात करें जहाँ पे माता शिवा भगवती का स्थापन है, वहाँ पे उनके हवाले से जन्मदिन बनाया गया, स्थापन पे हवन की गई। इसके बाद ही तुरंत ये एक और अच्छा इनिशिएटिव एडमिनिस्ट्रेशन का। मैं बता दूं कई दिनों से हम खुद यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं। जो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद वो भी यहाँ पे पहुंचे कई दिनों से। बिल्कुल मुजफ्फर, जिस तरह से आप बता रहे थे कि 34 साल बाद इस अहम मंदिर को फिर से अकीदतमंदों के लिए खोला गया है, तो इफ्तिताई तकरीब में कहाँ से लोग वहाँ पे पहुँचे थे, किस तरह के इंतजाम और क्या इफ्तिताई तकरीब मुकम्मल हुई है? मैं बता दूं ज़ोहर बिल्कुल लगभग कहीं न कहीं लगभग 1 घंटे से ज्यादा टाइम हुआ है। जो इस वक्त मंत्री वो अंदर बैठे हुए हैं। एक तो यहाँ पे जो ट्रस्ट है यहाँ का, उनके साथ कुछ सलाह मशवरा किया जा रहा है, कुछ डिमांड्स भी है उनकी, और साथ ही वहाँ पे अंदर हवन भी किया जा रहा है। और साथ ही मैं बता दूं ज़ोहर अगर हम इस वक्त की बात करें, जो आप ये तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं अपने मॉनिटर के जरिए, पंडित बरादरी से वहाँ पे जो अकीदतमंद है, श्रद्धालु यात्री खासी तादाद में आ रहे हैं। कहीं न कहीं जिस तरह हम तुलमुला गांधरबल में जब माता खैर भवानी का वहाँ पे जो उत्सव होता है, वहाँ पे जो त्योहार होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी आज लग रहा है कि वादी के अतराफ अकनाफ के साथ साथ खासकर अगर हम जम्मू से बाहर की भी स्टेटों की बात करें, वहां से भी इस वक्त यात्री यहाँ पे जोग दर जोग पहुंच रहे हैं। और जो ट्रस्ट के एहलकार है उनका यह कहना है कि इनके लिए यहाँ पे हमने बहुत सारे इंतजाम किए हैं, खाने पीने के साथ साथ रहने का इंतजाम किया है। या इसके साथ साथ मैं अगर हम सिक्योरिटी ग्रिड की भी बात करूँ, सिक्योरिटी ग्रिड भी बड़ा मजबूत नजर आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। पीर मुजफ्फर अनंतनाग से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि अनंतनाग के शांगस में ये उम्मा देवी मंदिर है जिसको आज 34 साल बाद दोबारा अकीदतमंदों के लिए खोल दिया गया। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय इस मौका पर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। उन्होंने इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की और भाईचारे की एक मिसाल फिर से इस इलाके में ज़िंदा हुई है, जहाँ पे मुस्लिम आबादी के ताउन से इस मंदिर को आज दोबारा खोल दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और बात शुमाली कश्मीर हंदवारा की करेंगे, जहां पे गुज़िश्ता रात एक भयानक आतिशबाजी का वाक़ा पेश आया, जिसके नतीजे में तकरीबन 10 रिहायशी ढांचों और 2 गाँवखाने जो है वो इस आग की वारदात में खाकस्तर हुए। आग की वारदात में करोड़ों का नुकसान हुआ। कई लोग खुले आसमान तले इस वक्त ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है और लोगों ने, जो मकामी लोग हैं या मुतासरीन हैं, उन्होंने कई इल्ज़ामात भी आयद किए कि इलाके में फायर स्टेशन नहीं है, जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर फायर स्टेशन होता तो शायद जल्द ही इस आग पर काबू पा लिया होता। आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा के राजवार इलाके में गुज़िश्ता शब पेश आए आतिशबाजी के एक वाक़े में तकरीबन 10 रिहायशी ढांचों और 2 गाँवखानों को नुकसान पहुँचा है। आग गुज़िश्ता शब देर गए 11 बजे जचलडारा इलाके में एक रिहायशी मकान से नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते पूरे मकान को, पूरे
महल्ले को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलती ही अगरचे मकामी लोग, फायर इमरजेंसी की गाड़ियां, पुलिस मौका पर पहुंची, ताम आग की इस वारदात में लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। और ये भयानक तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह इस आग की वारदात ने, आग के शोलों ने पूरे एक एक करके करीबन 10 मकानों को अपनी लपेट में ले लिया है और इसमें करोड़ों का नुकसान हुआ है। कई लोग खुले आसमान तले इस वक्त ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हुए हैं क्योंकि उनके आशियाने जल गए हैं। और मकामी लोगों ने इल्ज़ाम भी आयद किया है कि इलाके में फायर स्टेशन मौजूद नहीं है, जिस वजह से आग ज़्यादा फैल गई। अगर फायर स्टेशन होता तो शायद आग पर जल्द ही काबू पा लिया जाता। समीर साहब, ये सही है कि जो उनका माल मवेशी है वो सब जल गया और कम से कम 12 मकान यहाँ जल गए। तो बेसिकली मसला ये है कि इससे पहले भी तजमुला में ऐसा वाक़ा हुआ, उस वक्त भी हमने गवर्नमेंट से अपील की थी फायर टेंडर जलडारा में होनी चाहिए थी, मगर बदकिस्मती की वजह से वहाँ फायर टेंडर नहीं है। ये वजह है कि जब दूर से फायर टेंडर आता है तब तक वहाँ बहुत माली नुकसान होता है। इस सिलसिले में जब हमें पता चला 11:02 पर, तो हमने 101 पर कॉल की। उसी वक्त फायर सर्विस अमला यहाँ आया, तो टाइम लग गया थोड़ा, क्योंकि रास्ता बहुत दूर है, बहुत कठिन रास्ता है, हंदवारा से आना पड़ता है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ दाद देना था जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम का, वो बर वक्त आ गई और इंडियन आर्मी यहाँ बर वक्त आ गई। अपनी जान पर खेल कर उन्होंने यहाँ पर जो लोगों का बचाव। हम इस गांव से 3 किलोमीटर दूर है निचमन। जब हमने आग देखी है ऊपर उठा के, हमने देखी है पूरा गांव हम उठा के यहाँ पर पहुँचे हैं। पौने घंटे लगे हैं हमें यहाँ पर पैदल आने का, 11 बजे रात की। मगर ये अफसोस की बात है, अगर तहसील का दर्जा दे दिया इस राजवार पर, जचलदारा में हमारा हेडक्वार्टर आता है जचलदारा, जब तहसील का दर्जा दे दिया, मगर जब तहसील का दर्जा है मगर है कहाँ, क्या है वहाँ पर, क्या फैसिलिटी में भी कहाँ होगा ना। जब हंदवाड़ा से एक गाड़ी यहाँ पहुँचे है उसको 2 घंटे लगे हैं, अगर ये जचलदारा होगा ना इसको 25 मिनट 20 मिनट लग सकते हैं। ठीक है, मतलब जितना नुकसान ये हुआ है इससे बिल्कुल इससे बहुत कम हो जाएंगे अगर जचलदारा में होगा। इसी इलाके के एक सानिया से हम अभी गुजर रहे थे, मतलब कि इसी हफ्ते में एक बड़ा सानिया पेश आया यहाँ पर राजपुरा के अंदर, जहाँ पर हमने 4 लाशें जो है दफन की है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर अगर बात करेंगे, यंगरहार जो गरीब इलाका है, यहाँ पर 90 दर्जन से ज़्यादा मकानात जो हैं, करीब 9 मकानात ऐसे हैं जो जलकर खाकस्तर हुए हैं और राख के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। हालांकि इसमें बदकिस्मती ये है कि इनके माल मवेशी, इनका जायदाद, इनका सामान सारा राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। लेकिन लोगों की देरीना मांग थी कि जचलारा के अंदर जो है फायर एंड एमरजेंसी सर्विस यहाँ पर जो है लाई जाए। अगरचे शमीम साहब, जब आग लगी यहाँ पर 11 बजे के करीब था उस समय, जब गाड़ी हंदवाड़ा से यहाँ तक पहुँची है, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है 15 किलोमीटर डिस्टेंस आधे घंटे से ज़्यादा गाड़ी क्रॉस कर सकती है, यानी कि पौना घंटा लग सकता है। अंदर क्या कहेंगे? ये बड़ा अफसोसनाक वाक़ा है हमारे इलाके में। ये बेसिकली हमारे इलाके में जो फायर सर्विस की कमी है जचलदारा में और या वाडर में कहीं और किसी इलाके में, जिस कमी की वजह से अगर वो टाइम पे पहुंच जाती तो ये साइना नहीं हो जाता यहाँ पे। इसमें कुछ जानवर भी जल गए हैं, 8-10। शुमाली कश्मीर बारामूला के मोरहा उड़ी इलाके में एक गांव के अंदर कीड़े नमूदार हुए हैं, जिस दौरान रहायशी पजीर लोगों में खौफ हिरास का माहौल देखा जा रहा है। इलाके के लोगों ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरशाद भट्ट से बात करते हुए कहा कि इन कीड़ों की मौजूदगी से उनका जीना मुश्किल हो रहा है, जबकि दवाई और दीगर तौर तरीके भी अगरचे अपनाए गए, ताहम इन कीड़ों से अभी तक कोई भी निजात नहीं मिल पाई है। यहाँ तक कि कुछ लोग दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं। मुकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि कोई टीम इलाके में भेजी जाए ताकि लोगों के खदशात दूर हो सके। जबरदस्त हो ब्रो एक मेरी आए तो कोशिश कर तो यो साई भी सुबह घास फला बस झाड़ू है तो अंदर ते काटा नेबर ते काटा न खेमा बत न चवा चाय न कि तो उल्टी है वहाँ कोता मुश्किलात सपदान क्या कहाँ टीम आया योर ये वुचन खतर हाँ कहाँ टीम आई योर गाय तो वो नहीं है टीम क्या करो ऐसा सब कर दुआ देवा दर्द क्या पाए दुआ तो मतलब ये क्या बना फनेल तो आज के तो गोर साग मुझे बेवा दो से घास अस्पताल बस सुबह से नहीं रहे यम चा दोस गसान गबे सुबह शाम से सुबह शाम शामन से नहीं रहे तो सुबह आसान लोन लो मुझे आसा भांगो टाइम से समझ लपन से आसा पची पे झाड़ू से तसे माल ये बोन ते मन से फाकेज पर ये फटाई अच्छा ठल करके से फटाई ये तो ऐसो तय कमरस मस्त ऐसो तय काफी तेदा या कमरस में बरत वारिया
یم لب رٹت بتو کن اندر تام میٹنگ تل زیادہ پانس روز میٹنگ تل روزان ژوٗرِ روزان بس پتہ نیران یم ترٛٲے نا ڈُوۍ نیبر بہٕ کیٛاہ کرو کیمس یِوان یور صبح شام رٮ۪تھ کھنٛڈ اوس یتھ محلس بنمت پتہٕ آے یور اَسہِ تہِ گٔے 10-20 دۄہ أسۍ تہِ چھِ راتھ دۄہ وسان سہرن چھِ أسۍ وۄتھان یِہُنٛدُے پوٗجا پاٹھ چھِ أسۍ کران سہرن پتہٕ چھُ تاپھ چھُ لگان یِم چھِ گژھان غٲب کوٗتاہ مُشکِلات چھِ سپدان تُہٕنٛدۍ بچہِ چھِ ییٚتہِ یا بُزرگ چھِ ییٚتہِ مُشکِلات چھِ گژھان اندر چھِ اژان کمرن منٛز اژان بانہٕ منٛز وسان ادٕ أسۍ چھِ آسان جاڑوٗ ہٮ۪تھ وۄدٕنۍ جاڑوٗ ہٮ۪تھ یِم 15 دۄہ گٔے اَسہِ یِتھَے کٔنۍ یِم کر پٮ۪ٹھ گٔے کوٗتاہ ٹایم رٮ۪تھ ڈۄڑ رٮ۪تھ بہٕ آسہٕ یِم یتھ محلس بنمس پتہٕ آیہِ یِم یور 10-15-20 دۄہ گٔے یور یِمن رٮ۪تن منٛز یِوان جوٗن جُلایس منٛز یا اگست برونٛہہ 1 ؤری آیے یِم آیہِ یِہُس بیٚیہِ 3-4 ؤہرۍ آیہِ یِم بیٚیہِ سپرے شپرے کوٚروٕ تۄہہِ ییٚتہِ کیٛاہ ییٚتہِ کٔرکھا سپرے اگر اَسہِ پاے آسہِ ہے تُہۍ یِیِو اَسہِ آسان أکیٛاہ گٔے یہِ أکیٛاہ یِمے بلاش أکیٛاہ چھِ أکیٛاہ یِمے چھِ اوہ لگ بگ یِتھ پٲٹھۍ گوٚو یِمن لگ بگ ڈۄڑ رٮ۪تھ یِمن یوکُن تہِ گٔیکھ یِم 10-15 دۄہ 15-16 دۄہ لٔگِس تہٕ یوکُن آیہِ یِم اَسہِ کُن تہِ نتہٕ اوس یتھ بٔنمِس محلس اتھ چھُ وٕنکیٚنس تہِ تہٕ وٕچھو تۄہہِ فٔسٹ ٹایم یا امہِ برونٛٹھ تہِ وٕچھو امہِ برونٛہہ ٲسۍ 2 ؤری برونٛہہ تہِ آیے منٛزٕ پتہٕ اوس منٛزٕ کینٛہہ پتہٕ ٲسۍ منٛزٕ غٲبٕے تمہِ پتہٕ آیہِ یِہُس آیہِ بیٚیہِ یِہُس آیہِ بیٚیہِ تۄہہِ چھُ باسان یہِ چھُ گرمہٕ سۭتۍ یِوان یِم نہ کینٛہہ باسہِ مےٚ چھُ باسان کینٛژھا ما آسہِ گرمہٕ سۭتۍ ما آسہِ اتھ بارس منٛز چھُنہٕ اَسہِ تیوٗتاہ یہ ایکسپیرینس کیٛاہ ہٮ۪کو ؤنِتھ کِتھ پٲٹھۍ آے کھٮ۪نس چٮ۪نس منٛز اور ییٚتہِ روزنس منٛز کوٗتاہ مُشکِلات چھِ سپدان اَسہِ چھُ گژھان مُشکِلات أسۍ چھِ دُعا صُبحٲے لگان صُبحس 6 بجہِ نہٕ کینٛہہ یُتھُے گاش پھلان چھِ 5 بجہِ پٮ۪ٹھٕے أسۍ لگان أتھۍ سۭتۍ ڈوٗنس سورُے عیال لگان گۄڈٕ أتھۍ صفٲیی سۭتۍ تمہِ پتہٕ اتھ رن کرُن مگر بڑٕ مُشکِل گژھان اَسہِ واریاہ مُشکِل یہ تصویریں دکھانے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہاں پہ لگاتار جو ہے یہ کیڑے مکوڑے نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے جو ہے لائن لگی ہوئی ہے اس رہائش پذیر گھر کے حوالے سے بات کریں جہاں پہ ان بچوں کے ساتھ ساتھ چاہے دیگر جو فیملی ہے ان کا جو جینا ہے وہ حرام ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ واش روموں کی بات کریں چاہے یہاں پہ ڈائننگ ہال کی بات کریں. چلے آگے بڑھتے ہیں بات امرناتھ یاترا کے حوالے سے کرتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ جموں کشمیر میں شری امرناتھ یاترا عقیدت احترام اور انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ جاری ہے. جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے آج اور ایک قافلہ سخت سیکورٹی بندوبست کے بیچ کشمیر کی اور روانہ ہوا. 4889 یاتریوں کا 17واں قافلہ 187 چھوٹی بڑی گاڑیوں میں سخت سیکورٹی بندوبست کے بیچ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں واقع نونون پہلگام اور وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل میں واقع بالتل بیس کیمپ کے لیے روانہ ہوا. ان یاتریوں میں سے 2993 یاتری جن میں آپ کو بتا دیں کہ اور ایک قافلہ آج بھگوتی نگر جموں سے کشمیر کی اور روانہ ہوا جس میں سے 2993 یاتری جن میں 2380 مرد 500 خواتین 11 بچے 22 سادھو شامل تھے. نونون پہلگام بیس کیمپ کے لیے روانہ ہوئے جبکہ 1292 مرد 586 خواتین 10 بچے اور 8 سادھو بالتل بیس کیمپ کے لیے روانہ ہوئی. بتا دیں کہ جموں کشمیر میں 28 جون کو امرناتھ یاترا کی شروعات ہوئی تھی جب لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے پہلے قافلے کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا تھا. اور آپ کو بتا دیں کہ 52 دنوں پر یہ یاترا 19 اگست کو اختتام پذیر ہوگی اور جو یاتری درشن مکمل کر کے آتے ہیں وہ انہوں نے جموں کشمیر انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا کیونکہ اس بار جس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں وہ اس سے مطمئن نظر آئے. اور آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ 14 دنوں میں تقریباً 2,80,000 امرناتھ یاتریوں نے درشن مکمل کیے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ ایک طرف جہاں جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے یاتریوں کا
कश्मीर की ओर रवाना होने का सिलसिला जारी है। वहीं बालतल और नुनवन बेस कैंप से भी यात्रियों का पवित्र गुफा की ओर रवाना होने का सिलसिला जारी है। 2,80,000 से ज़ायद यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन मुकम्मल कर लिए हैं और सीधा बालतल चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा और कश्मीर डिप्टी ब्यूरो चीफ सलीम वानी हमारे साथ है। सलीम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अमरनाथ यात्रा जारी है। आज 17वां काफिला भगवती नगर जम्मू से रवाना हुआ और कई यात्रियों ने दर्शन मुकम्मल कर लिए हैं। करीबन 2,80,000 यात्रियों ने अब तक दर्शन मुकम्मल कर लिए हैं। क्या कुछ उन यात्रियों का कहना है जिन्होंने दर्शन मुकम्मल किए, इस बार का एक्सपीरियंस किस तरह का रहा? देखो जरूर बात करेंगे 2024 की जो यात्रा हुई, आज 16वां दिन है। आज 16वें दिन तक 2,80,000 से ज्यादा यात्रियों ने बाबा बर्फानी का दर्शन किया है। इस बार सबसे बड़ी अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि अभी तक मौसम ठीक रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा 2024 में जो मौसम था काफी डिस्टर्ब किया था यात्रा को, कि पहले 10 दिन में बारिश, बाकी चीजें लैंडस्लाइड स्मूथ थी। लेकिन इस बार अभी तक 16वां दिन है, अभी तक मौसम ठीक रहा और यात्रा भी बड़ी अच्छी तरह से चल रही है। चाहे आप अमरनाथ बालतल ट्रैक की बात करो, चाहे आप इंतजामात की बात करो, चाहे आप बाकी चीजों की बात करो। सिक्योरिटी टायर 3 टायर सिक्योरिटी मिल रही है आपको श्रीनगर से बालतल तक यात्रियों को, और बाज़ाब्ता तौर पर जो इंतजामात थे आपने अभी विजुअल में भी चलाए, जो बाइट से यात्रा, बाइट्स इस बार यात्रा या लंगर या घोड़े वाले या पालकी वाले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ट्रैक है, ट्रैक को इस बार बड़ा जबरदस्त बीआरओ ने बनाया है। उसके बाद जो इंतजामात है, चाहे आप ट्रैक में जो इंतजामात है या बेस कैंप में इंतजामात है या आपको केव के पास इंतजामात है, वो यात्रियों के मुताबिक बड़े जबरदस्त है। तो यात्री जो इस टाइम 2024 संजय यात्रा है वो चल रही है, इंतजामात भी अच्छे हैं, पूरा अच्छा माहौल भी है। टॉप ऑफिशियल्स मॉनिटर करते हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी शाहिद चौधरी जो नोडल अफसर है बालटल में, उसको पूरी तरह से मॉनिटर करते हैं। उसके बाद आप नुनवन बेस कैंप या पहलगाम की साइड करो, वहां पे भूपिंदर कुमार कमिश्नर सेक्रेटरी है, नोडल अफसर है, डीआईजी सुजीत कुमार जो पहलगाम को देखता है, डीआईजी सेंट्रल कश्मीर जो बालतल बेस कैंप को देखता है। सलीम, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी 16 दिन ही हुए, 3 लाख के करीब यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन मुकम्मल कर लिए हैं, तो क्या ये माना जाए कि इस बार माजी के तमाम रिकॉर्ड टूट जाएंगे, जिस तरह से यात्रियों की रिकॉर्ड तोड़ तादाद जो है अमरनाथ यात्रा का विजिट कर रहे हैं? बिल्कुल जरूर। अभी तक तो वही तो मैंने बोला कि 16वां दिन है, जो 2,80,000 यात्री ने अभी तक बाबा बर्फानी का दर्शन किया है। हो सकता है इस बार रिकॉर्ड भी टूट सकता है, हो सकता है यहाँ इस बार कमी पीछे भी हो सकती है, लेकिन जो यात्रा की जो स्पीड है, जो यात्रा की जो तादाद है, इस बार काफी देखने को मिल रही है। स्मूथ से चल रही है यात्रा और पूरी तरह से जो इंतजामात भी है, यात्रा जो है चाहे यात्रा के जाने के टाइम खुशी नजर आते हैं और वापस आने के टाइम भी खुशी नजर आते हैं। पूरी तरह से इंतजामात भी है, मॉनिटरिंग भी चलती है और बिल्कुल दोनों साइड से यात्रा अमरनाथ यात्रा जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। कश्मीर डिप्टी ब्यूरो चीफ सलीम वानी तफसीलात फराम कर रहे थे और बता रहे थे कि अमरनाथ यात्रा अक़ीदत व एहतराम और जोश व खरोश से जारी है। आज 17वां काफिला भगवती नगर जम्मू से वादी कश्मीर की ओर रवाना हुआ और उधर बालतल और नुनवन बेस कैंप से भी यात्रियों का पवित्र गुफा की ओर रवाना होने का सिलसिला जारी है। अभी तक 3 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन मुकम्मल कर लिया। फिलहाल अभी तक इस ताज़ा उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहुल लाइव को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।